कि जो बिल्कुल लास्ट चीज जो हमने की थी, दैट वाज कि यू हैव आयोनिक प्रेसिपिटेशन. आयोनिक प्रेसिपिटेशन है कि कोई भी insoluble सॉल्ट प्रोड्यूस करनी है. तो आई जस्ट डू वन मोर एग्जांपल. तो उसके मैंने दो तीन स्टेप्स बताए थे कि if you want to produce any insoluble salt, uh, think of an insoluble salt like aluminum carbonate. All carbonates are insoluble except group 1. So aluminum carbonate, कोई मुझे बताए, how would you do it? You'll find two reactants. One of the reactants should have aluminum ions in it, and the other one should have carbonate ions in it. So aluminum nitrate and sodium carbonate. ठीक है, आसान काम है, and they have to be soluble. ठीक है, that's the other thing. तो इसके साथ सोडियम अटैच कर लो. It could be any ions actually, as long as they are soluble. Nitrates जो हैं वो सारे के सारे they're all soluble. ये Na2CO3 they're all soluble. तो ये सारे ions जो हैं, because they're soluble, they're going to mix in water. Aluminum ions would scatter, and nitrate ions, they would scatter in water because it's soluble. Or दूसरा sodium ions and carbonate ions, they would also, and the ions would randomly combine with each other. But if aluminum ions and carbonate ions combine, they would form a precipitate because they're insoluble. So if गलती से भी if they combine, then aluminum carbonate would be formed, which is a solid which doesn't dissolve in water. So all the ions would be removed from the solution, and they would form a precipitate. और solution में क्या रह जाएगा? Sodium nitrate. But the sodium and nitrate ions, even if they combine, they're still soluble. So they would dissolve back into the solution because they're very soluble. ठीक है, so that's the other thing. और फिर उसकी explanation भी simple थी कि just mix them, filter out the precipitate of aluminum carbonate and wash it with distilled water and dry it in filter papers. That's it. ठीक है, ये सारा कुछ clear है? मरियम, is this clear? हमजा? जी सर. अच्छा. Yes, sir. अच्छा, so that's all about equations. That's all about equations. And अच्छा, it's all about equations and formation of salts. ठीक है, we're done with it. लेकिन इसकी obviously we need a lot of practice. ठीक है, we need a lot of practice. This is probably the hardest things in chemistry. बाकी सारा आसान है. ठीक है, ये वो जो बाकी सब आसान है. And I'm going to start. I mean, this board has too much stuff on it. I'm going to I'm still doing acid bases and salts. अच्छा, and what I'm doing is anything related to acid bases and salts, we're studying it together. बहुत सारी चीजें ना different chapters में, but they don't make a lot of sense in those chapters. ठीक है, because क्योंकि acid bases और salt से related जो भी चीज है, it's better to study those things at the same time. अच्छा, इससे आगे just one second, wait. अच्छा, न्यू बोर्ड, इसका लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा क्लास के एंड में. So there are lots of random things that we still have to study related to acid bases and salts. वो सारा तो थोड़ा systematic था. Remember कि bases were metal oxides and metal hydroxides. ठीक है. Now we're going to study about gases, because there's certain gases that are acidic and there's certain gases that are basic, and there are compounds that are neutral as well, and there are compounds that are amphoteric as well. तो पहले तो gases के ऊपर रहते हैं. Remember ammonia. ठीक है, the first one is a basic gas. Ammonia is a basic gas. ठीक है, whenever you see ammonia, that's a basic gas. What's the reason why it's basic? The reason it's basic is कि अमोनिया जो होता है ना, हमने रिएक्शन भी किया था. अमोनिया जो है that reacts with acids to produce salts. ठीक है, remember we did this reaction.
ये हमने फोर्थ रिएक्शन किया था कि NH3 likes to accept H plus one ions. Anything that likes to accept H plus one ions, that is a base. ठीक है, बेस की डेफिनेशन ये थी कि they accept H plus one ions. तो look at what's happening to ammonia over here. Ammonia changes from NH3 to NH4 plus 1. इसका मतलब it has gained an H plus 1 ion. So anything that accepts H plus 1, that's a base. And ammonia is a basic gas. So if ammonia is a basic gas, तो litmus paper would turn from blue to red. सर Yes. आप दोबारा मेथड बता देंगे, जैसे कि HCl में से हाइड्रोजन रिमूव करके फिर क्या करना है, जो सॉल्व बना रहे हैं। मतलब वो था ना कि ये हमने वो रिएक्शन किया था, किधर है हमारा पिछला बोर्ड है, एक सेकंड, लेट मी गो टू द ओल्डर बोर्ड. ये बस एक मिनट ये खुल जाए. ये हमने स्टार्ट किया था ना, हमने रिएक्शंस प्रैक्टिस किए थे जब मेटल प्लस एसिड और बेस प्लस एसिड और वो सारे कर रहे थे. तो ये रिएक्शन नंबर 2 था. फिर रिएक्शन नंबर 3 था कार्बोनेट्स वाला. फोर्थ किधर है? 1 सेकेंड, सॉलिबिलिटी पे आ गए थे. हाँ, सर आपने आयन की क्वेश्चन पढ़ा था? कौन सा? सर आयन की क्वेश्चन. हाँ, वो तो हम पढ़ चुके हैं ना इसमें. हाँ, ये वाला फिफ्थ रिएक्शन. फिफ्थ रिएक्शन वाज कि वी स्टडीड अमोनिया प्लस एसिड. कि अमोनिया जो है ना, NH3, दैट्स अ बेसिक गैस. ठीक है, व्हाई इज इट बेसिक? बिकॉज इट एक्सेप्ट्स H plus 1 के. अगर उसको हमेशा अमोनियम सॉल्ट बनती है कि अगर उसको एसिड के साथ, एसिड वुड गिव इट्स H टू अमोनिया, तो NH4 plus 1 बन जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? Cl minus 1. हासिल क्लियर है ये? सही से. Same over here, NH3 with H2SO4. H2SO4, what acids, what do? They give H plus 1 ions. तो NH3 accepts H plus 1 ions, तो NH4 plus 1 बन जाएगा और पीछे का रह जाएगा SO4 minus 2. क्रिस क्रॉस करोगे, this would be the formula. Same with NH3 with phosphoric acid. Phosphoric acid would give H plus 1, so it would become NH4 plus 1, and what's going to be left is going to be PO4 minus 3. तो क्रिस क्रॉस करोगे, it's going to be NH4 3 PO4. Clear है? Is this clear? जी सर, हमने जब सॉल्व बना रहे थे सिंपल सा हाइड्रोजन की जगह जो है एसिड में जो हाइड्रोजन की जगह है उसमें NH3 रख देंगे, है ना? हाँ, मतलब मैंने बताया था कि नॉर्मल सॉल्ट जो होती है ना, H की जगह मेटल आ जाता है, राइट? सही जैसा से. NaCl, MgCl या कोई भी मेटल. लेकिन और H का जो नंबर जो है नीचे लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, वो सेम रहता है. कौन सा नंबर? ये जैसे वाला? कि NH3 था और नहीं, वो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. उसका इससे ताल्लुक है कि चार्जेस क्रिस क्रॉस करो. तुम ये कह रहे हो ना कि अच्छा. यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी 2 है, ये तुम कह रहे हो? यस सर. नहीं, वही मतलब मैं. कि नहीं नहीं नहीं, देखिए H, देखिए सर H2SO4 जो है ना, H2 नीचे लिखा हुआ है, लेकिन NH4 में 4 आ गया. नहीं, वो तो NH3 ने H plus 1 गेन किया ना. हमेशा अमोनियम सॉल्ट बनती है ना. अमोनियम होता क्या है? अमोनियम इज NH4 plus 1. हाँ NH4. सही. ठीक है, तो ये बनना ही, मैं सिंपल वो तरीका बता देता हूँ कि नॉर्मल सॉल्ट क्या होती है कि आपके पास HCl होता है. ठीक है, अच्छा HCl है तो Na आ जाएगा, कोई मेटल आ जाएगा उसकी जगह, H की जगह, राइट? अमोनियम सॉल्ट होती है ना, तो उसके अंदर व्हाट हैपेंस इज कि अमोनियम आ जाता है. अमोनियम इज द आयन जो हमने सही. स्टार्ट में लिस्ट नहीं पढ़ी थी. ठीक है, जी सर. सही. तो इन सारों में जो सॉल्ट्स बन रही है ना, अमोनियम सॉल्ट्स बन रही है. H2SO4 था तो H की जगह अमोनियम आ गया, NH4 plus 1. H की जगह NH4 plus 1 आ गया. वो फिर बाद में क्रिस क्रॉस करना है, फॉर्मूला बाद में बनाना है. ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर, थैंक यू. ठीक है. बाकी वो क्लियर है? बिनाहिल, नूर, क्लियर है? राफे, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, एनीवेज, Yes, sir. गैस, चलो ठीक है, गैसेस के अंदर रिमेंबर NH3 इज अ बेसिक गैस. ठीक है, व्हेनेवर यू हियर द वर्ड NH3, ये टेस्ट भी है, ये उसका ना वो
वो जो मैंने शीट दी हुई है ना उसके अंदर कुछ टेस्ट है सब्सटेंसेस के, उसके अंदर दिस इज द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग NH3 gas. I said then you have lots of gases which are acidic. अच्छा ये भी शीट के अंदर वैसे मेंशन है, वो जो शीट मैंने दी हुई है ना 2 पेजेस की, उसके अंदर ये एक्चुअली लिखा हुआ है. अच्छा नाउ एसिडिक gases, which gases are acidic? तो एसिडिक gases क्या है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते थे, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना दे आर एसिडिक. एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. व्हाई इज कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक? द रीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इज कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी में मिलाओ ना, तो ऑल्दो इट्स नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, तो व्हाट हैपेंस इज कि कार्बोनिक एसिड बन जाता है. मतलब इन सारों को इकट्ठा करो, इट्स गोइंग टू बिकम H2CO3. ठीक है, इट एंड्स अप फॉर्मिंग एन एसिड. कोक के अंदर यही होता है. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड, ऑल योर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैव दिस कि इफ यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड इट्स एडेड टू वाटर एट हाई प्रेशर्स, तो वो मिलके ना दे फॉर्म एसिड. तो कोक जो होती है ना दैट्स एन एसिड. लेकिन अच्छी बात ये है कि जैसे कोक का वो प्रेशर खत्म करते हो ना, तो एकदम से ना कोक के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं. वो किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के. तो वो वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स एस्केप कर जाते हैं, और वो वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. इवन पीने के बाद आपको वो बर्ब्स वगैरह क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि आपके पेट में भी जाके ना देयर इज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग रिलीज्ड. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर. बहुत हाई प्रेशर्स के ऊपर ना वो उसमें डिसॉल्व होती है इन फॉर्म्स H2CO3. द मोमेंट यू लेट गो ऑफ द प्रेशर, तो वापस उल्टा रिएक्शन हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट्स फॉर्मिंग. ठीक है. अच्छा, but anyways, what I just wanted to state was that carbon dioxide is an acidic gas because it forms an acid when it mixes with water. Hamza, is this clear? Mayim, clear? जी सर. अच्छा, उसके Yes, sir. बाद बाकी सारी gases, for example SO3 है, that's also acidic. Why is it acidic? क्योंकि if you mix SO3 with water, तो guess करो कौन सा एसिड बनेगा? सारों को इकट्ठा करो, क्या बनेगा? H2SO4. ठीक है, एग्जैक्टली H2SO4 बनेगा. मतलब 3 ऑक्सीजन तो पहले ही थे, वाटर से भी एक आ जाएगा, सो इट्स गोइंग टू फॉर्म H2SO4. Now you can have SO2 gas, that's also acidic. कि if I mix SO2 gas with water, इसका बताओ कौन सा एसिड बनेगा? मतलब नीचे वही, करेंगे. मतलब SO2 को, सॉरी, SO2 को वाटर के अंदर अगर मिक्स करोगे, what acid would be formed? H2SO3. ठीक है, एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू फॉर्म H2SO3. तो आसान काम है फिगर आउट करना कि कौन सा एसिड बनेगा. दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड. वो लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, वो जो शीट है. अच्छा, सर, इस, हाँ सर ये नॉर्मल जो भी एसिड गैसेस हैं उनकी निशानी है ना ही सेम, जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बन जाएगा. हाँ, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना दे मोस्टली एसिडिक, क्योंकि दे ऑल फॉर्म एसिड्स व्हेन यू मिक्स देम विद वाटर. ठीक है. सही. NO2 का गेस करो कि क्या कौन सा एसिड बनेगा? नाइट्रिक. ठीक है, एग्जैक्टली नाइट्रिक एसिड. अच्छा, इसकी 2-3 इक्वेशन है. ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बनाता है, वरना वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी. ठीक है. बोथ ऑफ देम आर फॉर्म्ड व्हेन NO2 गैस, वाटर मॉलिक्यूल एक ही होगा. ठीक है. ये दो होंगे. तो अगर, लेकिन अगर वैसे ही तुक्का लगाना है तो नाइट, मतलब खुद पता होना चाहिए कि NO2 को पानी में डिसॉल्व करो, इट्स गोइंग टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड. ठीक है. अच्छा, और कौन से फास्फोरस के सर, ऑक्साइड? हाँ सर HNO3 और HNO2 एक साथ मिलेंगे. हाँ, इसमें एक साथ बनते हैं. ये भी हम थोड़ी देर बाद एसिड रेन अच्छा, पढ़ेंगे ना, तो उसमें याद रखना. या इसकी ना असल में वो एक बैलेंसिंग का इशू होता है. तो इसकी ना देयर इज अनदर इक्वेशन व्हिच इज एक्सेप्टेबल कि NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है and ends up forming nitric acid. लेकिन बीच में ना, wait a second, इसको बैलेंस करना है तो 2 NO2
तो इधर देख लो ऑक्सीजन्स कम हो गए. There's 6 oxygens on this side and there are 5 oxygens on this side. So you have to add an oxygen. ठीक है, that needs to be अच्छा added. तो ये इक्वेशन भी एक्सेप्टेबल होती है कि अगर आपने खाली नाइट्रिक एसिड बनाना है तो देयर हैज टू बी एन ऑक्सीजन फ्रॉम समवेयर. लेकिन वो आ जाता है, वो एयर से आ जाता है. अच्छा, P4O10 तो क्या लगाओ, कौन सा एसिड बनेगा? H3PO4. ठीक है, so P4O10 would form, if you mix it with water, it would form, क्या बनेगा? H3PO4. PO4. ठीक है, H3PO4. You can balance it 4 तो 12 हो जाते हैं, तो this should be 6. ठीक है, that's it. अच्छा, so the basic thing is कि you must know कि all these gases, oxides, non-metal oxides, they are mostly acidic, but not all of them. कुछ होते हैं जो neutral भी होते हैं. One of them is carbon monoxide, a very highly poisonous compound. ये भी उस शीट के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, ये वो चीजें जो रटा लगा रहा है, वो 2 पेजेस आप बस उस पर फोकस किया करो मेमोराइज करने की. दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड NO आर न्यूट्रल. ठीक है, रिमेंबर दैट. बल्कि इसको हेडिंग ही वही दे देते हैं, न्यूट्रल गैसेस. ठीक है, एक्चुअली देयर आर लॉट्स ऑफ गैसेस which are neutral. ठीक है, there are lots and lots of gases which are neutral. Oxygen gas is neutral, nitrogen gas is neutral. मतलब ज़्यादातर जो everyday gases है, hydrogen gas is neutral. So a lot of them are neutral. अच्छा, and the last one is amphoteric. Has anyone heard the term amphoteric? क्या मतलब होता है उसका? yes so can react with both. ठीक है, amphoteric compounds are those that can behave as both acids and bases. They can, well, there are very few compounds that are amphoteric, can react with both acids and bases. ठीक है, so that is what amphoteric is. You just need to remember 3 compounds जो कि मैंने sheet में भी लिखे हुए हैं. Remember, aluminium oxide is amphoteric. Then there is zinc oxide, which is amphoteric. There is lead oxide, which is amphoteric. ठीक है, apart from that, plenty of other compounds which are amphoteric as well. Probably questions के अंदर लिखा होगा कि let's say वो कह देते हैं कि germanium है. अब आपने germanium कभी भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको वो कह दे वो, लेकिन if they mention some other compound, then that compound they're going to state that it's amphoteric. You just need to know what does amphoteric mean, and you have to चलो memorize वो वाली equations हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो बाद में पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर. अच्छा, just remember they can react with both acids and bases. So with acid they behave as a base. Well, this is important. Okay, with an acid they behave as a base. And with base they actually end up behaving as an acid. ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो वो एसिड बन जाएंगे and they would start releasing H+O ions. और एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो they would start behaving as a base and they would start accepting H+O ions. ठीक है, so that's amphoteric. Hamza, is this clear? Hassan, clear है? Rafiq, clear है? Yes, sir. Yes sir. So that's one thing. So we've studied तो इसकी इक्वेशन बाद में करेंगे. कौन सा? इसकी इक्वेशन सेम होगी ना, मतलब के अगर बेस होगा तो. हाँ, वो बाद में करेंगे क्योंकि एक्चुअली इसकी मतलब इसकी इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बस ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन जो है ना एल्यूमिनियम की, वो आगे जाके मेटल्स का चैप्टर है उसके अंदर आप पढ़ोगे. तो उसके अंदर you will study 4 processes.
which you have to memorize, ठीक है? तो सही से। उसके अंदर ना वो इक्वेशंस हम पढ़ लेंगे, तो इसलिए अभी छोड़ो। अभी वो जो 5-6 इक्वेशंस हमने की हुई हैं, उन्हीं पे फोकस करो। अच्छा, so amphoteric, what else? The next thing. Next thing is कि अब मुझे याद दिलाना कि I'll create a PDF and send it in the group as well. वो पिछला जो सारा किया है। अच्छा, next thing. Next thing is about let's talk about acid rain. अच्छा, let's talk about acid rain. Again, something that's more of मतलब general knowledge की चीज है. What causes acid rain? Does anyone know what causes acid rain? मतलब which pollutants? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है. Oxides of sulfur and nitrogen. ठीक है. For example, SO2 and SO3 या फिर वो NO और NO2, they are the main culprits. और ये हमने भी पहले पढ़ा है, अभी बिल्कुल पहले पढ़ा है कि ये तो gases ही acidic है कि SO3 if it mixes with water it would form sulfuric acid. Same with NO. NO2 जो है if you mix it with water it would form nitric acid. ठीक है. So आपकी जो रेन है ना, अगर ये gases atmosphere में होंगी तो your rain would get converted into an acid. ठीक है. मरीम क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा डिटेल. How sources. Number one, ये SO2 कहाँ से आता है? Any idea? Atmosphere में. Sulfur. किसी किसी को कोई आइडिया नहीं है? मिनाइल, any idea? राफे? फिर कार के एमिशन से। नहीं, कार emissions नहीं है. वो भट्टी में से। किसमें? चलो ठीक है, वो क्लोज इनफ. अच्छा, व्हाट्स सल्फर? सल्फर कहाँ पे होता है? दिस कम्स फ्रॉम combustion of sulfur. Combustion of fuels containing sulfur, like coal. जो आपके जो रॉ फ्यूल्स होते हैं ना, जो अर्थ से निकलते हैं, उसके अंदर ये अनवांटेड सल्फर होता है. और सल्फर को जब आप बर्न करते हो ना, मतलब यू आर ट्राइंग टू बर्न कोल, लेकिन कोल के अंदर सल्फर है. सल्फर वुड गेट बर्न्ड एंड इट वुड प्रोड्यूस SO2. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड, स्पेशली कोल. तो ये आपके खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर पीपल आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम कोल पावर प्लांट्स. पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ कोल पावर प्लांट्स, तो उसमें स्मॉग होती है. ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्मॉग, सो देयर इज अ लॉट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. अच्छा, ये खास फिर तौर ये पे क्वेश्चन कैसे मैंने बताएंगे? क्या ये ऑक्सीजन का सही से इसलिए। एयर से ना बर्न कर रहे हो ना. कंबशन क्या होता है? अच्छा, सही से। मतलब कंबशन इज अ रिएक्शन इन व्हिच द सब्सटेंस बर्न्स विद ऑक्सीजन, राइट? तो बर्न तो आप यस। कोल कोल को कर रहे थे ना. एंड इफ यू हैव सीन बर्न मैचेस, अगर इफ यू लाइट अप अ मैच या बर्न मैच होगी तो उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होगी जो आपको उसमें भी आती होगी व्हेन यू बर्न कोल. ठीक है. अगर बारबेक्यू किया होगा ना, कोल की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है. वो जो स्मेल है ना, वो कोल बर्न करने की नहीं होती. वो एक्चुअली कोल के अंदर जो सल्फर होता है ना, दैट इज व्हाट इज बर्निंग. तो वो जो स्मेल सी होती है ना कोल की बर्निंग की, दैट्स बेसिकली द स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर दैट्स बर्निंग. अच्छा, anyways, there's another important, very important source of sulfur dioxide, and that source is volcanoes or volcanic activity. तो उसके अंदर भी यही हो रहा होता है, कंबशन हो रही होती है. सेम थिंग कि volcanoes, अर्थ की क्रस्ट से जो मैग्मा होता है, that has a lot of sulfur in it. When it burns, तो it ends up producing a lot of ash, and वो जो सारे clouds निकल रहे होते हैं ना, it produces a significant amount of sulfur dioxide. Volcanic activity. अच्छा, नेक्स्ट वन. दूसरा क्या था? NO2. उसको पहले अंडरलाइन कर लें.
NO2 कहाँ से आता है एटमॉस्फेयर के अंदर? सर फ्रॉम बर्निंग हॉट इंजन्स। ठीक है, NO2 जो है अच्छा NO2 इसको एक सेकेंड। अच्छा NO2 जो है नंबर 1 इज कार इंजन्स। ठीक है, that's those are the number one culprits. कार इंजन्स क्यों? क्योंकि कार इंजन्स दे हैव वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो कार इंजन्स के अंदर कंबशन हो रही होती है। एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नॉर्मली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डोंट रिएक्ट। ठीक है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, in normal conditions, nitrogen is very inert. Does anyone have any idea why it's inert? Inert का मतलब है it's very very unreactive. स्टेबल है। नहीं स्टेबल तो है, लेकिन कोई आइडिया? राफिफ कोई आइडिया? बिनाहिल, नूर? 78% जो अर्थ की एटमोस्फेयर है ना, मतलब ऑल द एयर दैट्स अराउंड इट, इट्स मोस्टली नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम है। हम किस पे जिंदा हैं? हम ऑक्सीजन पे जिंदा हैं ना। इसका मतलब है ऑक्सीजन इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शंस। ऑक्सीजन इज रिएक्टिव। ठीक है, वी ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कुछ भी नहीं करती। किसी को कोई आइडिया है कि क्यों नहीं करती? द रीजन फॉर दैट इज कि नाइट्रोजन इज वेरी इनर्ट, क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब वो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, व्हेनेवर समथिंग हैज टू रिएक्ट, पहले पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर वो किसी और चीज के साथ बॉन्ड बनाएगा ना। तो अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स, all its electrons are tied up over here, and it can't free itself from the other nitrogen atom, ठीक है, it's bonded to it very very strongly, तो वो फिर किसी और के साथ किस तरह बॉन्ड बनाएगा? So N triple bond N is very strong, so that's the reason why it's inert. Hamza, is this clear? Mariam, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये याद रखें कि नाइट्रोजन जो है आपके इर्द गिर्द हर जगह है। ठीक है, इट्स एवरीवेयर अराउंड यू, लेकिन वो रिएक्ट किसी के साथ नहीं करती। और उसकी रीजन है कि उसका जो बॉन्ड है ना वो इतना स्ट्रांग है कि वो टूटता ही नहीं है, तो वो रिएक्ट किस तरह करे? और अच्छा, सो लेकिन इधर कार इंजन के अंदर नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाती है। एटमोस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वो दोनों आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं, एंड दे एंड अप फॉर्मिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड NO एंड NO2। ठीक है, दोनों बनना शुरू हो जाते हैं। कार इंजन के अंदर क्यों? क्योंकि हॉट कार इंजन्स they provide enough energy to break the N triple bond N. तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये तोड़ना मुश्किल था ना, लेकिन अगर कार इंजन बहुत हॉट होंगे, और कार इंजन के अंदर एयर ही होती है, ठीक है, आपका जो वो कार्बोरेटर्स या जो भी अब तो खैर इलेक्ट्रिक कार्स होगी, सो दिस इज नॉट हैपनिंग। तो नाउ योर न्यू कार इंजन आर नॉट प्रोड्यूसिंग दीज पोल्यूटेंट्स, क्योंकि दे नॉट वर्किंग ऑन एयर, वो तो बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं। बट द ओल्ड वंस दे बर्न फ्यूल यूजिंग एयर। तो एयर अंदर जाएगी जाएगी, ये एयर है, जब वो जाएगी हाई टेम्परेचर्स के ऊपर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, दे वुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, मरियम क्लियर है? नूर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो हॉट कार इंजन्स प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू ब्रेक द एन ट्रिपल बॉन्ड इन। तो आपके शहरों के अंदर ना, सिटीज के अंदर, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर योर कार इंजन्स, क्योंकि ये बहुत सारा NO2 प्रोड्यूस करते हैं। एंड NO2 जो आप, इफ यू लुक एट अ सिटी फ्रॉम आउटसाइड, फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद, इफ समबडी इज कमिंग टू इस्लामाबाद फ्रॉम द मोटरवे, तो दे कैन सी अ क्लाउड, अ हेजी क्लाउड ओवर इस्लामाबाद।
That's all because of car engines, cars producing this NO2. This is the main culprit for smog. खैर pollutants हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ वो acid rain से related चीजें पढ़ रहे हैं. As a second source, the same thing, pretty much exactly the same thing happens during lightning strikes. ठीक है, something very similar happens when lightning strikes take place. Lightning strikes जो है, they heat up the air. ठीक है, if there's a lightning strike, air heats up very very strongly. जिससे क्या होता है कि वो N triple bond N का जो bond है ना, that breaks and they start reacting with each other and they start forming oxides of nitrogen. ठीक है, NO2 और NO दोनों बनना शुरू हो जाते हैं. तो अभी तक हमने एसिड रेन के अंदर क्या पढ़ा है? हमने एसिड रेन के अंदर पढ़ा है कि द मेन कल्प्रिट फॉर एसिड रेन इज आर दीज टू ऑक्साइड्स, SO2 and nitrogen के oxides and sulfur के oxides. We've already studied that these oxides are acidic in nature क्योंकि when they react with water they form sulfuric acid or sulfurous acid. Nitrogen के oxides pretty much do the same. They react and they form nitric acid and nitrous acid. And the other thing that we studied was कि ये सारे oxides आते कहाँ से? सल्फर के ऑक्साइड्स जब आप रॉ अनरिफाइंड फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो लाइक कोल, तो उसके अंदर दे हैव अ लॉट ऑफ सल्फर एंड इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. कार्स वगैरह नहीं प्रोड्यूस करती है, कार का जो फ्यूल होता है दैट्स वेरी रिफाइंड, उसके अंदर इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ सल्फर. और फिर द अदर थिंग इज वोल्केनिक एक्टिविटी, कि उसके अंदर भी अर्थ की क्रस्ट से देयर इज अ लॉट ऑफ सल्फर दैट्स बर्निंग अप टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स. NO2 कहाँ से आता है? NO2 आता है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑलरेडी प्रेजेंट, but they don't react because hard to break the N triple bond in. लेकिन once that breaks, if the temperature is very high, तो the reaction would happen. कार engines के अंदर और lightning strikes के अंदर. ठीक है, हसन क्लियर है, हमजा क्लियर है? जी सर. सर एक चीज पूछनी है. Yes, sir. सर आपने एसिडिक गैसेस में पढ़ाया था ना NO2 का, दो इक्वेशन पढ़ाई थी, हाँ, उसको सेकंड वाले का समझ नहीं आया सर. ये हाफ ऑक्सीजन कहाँ से आई? ये से. ठीक है, जी सर. दोनों देखो दोनों समझा दें. हाँ, एक रिमेम्बर मैंने बताया था एक मॉलिक्यूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दैट्स वाटर. एसिड बेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट ही उसके इर्द था ना, सही. कि वाटर इज द मेन मीडियम जिसके अंदर रिएक्शंस होते हैं. तो वाटर के अंदर दो आयंस होते हैं, H+1 एंड OH आयंस. तो कभी वाटर का H+1 ज्यादा हो जाता है अगर आप एसिड डाल दो, और वाटर के H+1 कम हो जाते हैं अगर आप बेस डाल दो. तो मैंने वो वाटर का बताया था कि व्हाई डू वी स्टडी एसिड एंड बेसिस इन सो मच डिटेल. दूसरा जो इम्पोर्टेंट केमिकल है ना अर्थ पे, दैट इज ऑक्सीजन. क्योंकि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन इज किधर गया, इट्स वेरी वेरी इनर्ट. हम सारे ना ऑक्सीजन के ऊपर जिंदा हैं, एनिमल्स वगैरह, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड ऑक्सीजन एंड द अदर वन इज वाटर. सो ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे कह लो कि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ. किसी और प्लैनेट के ऊपर शायद कहानी कुछ और हो, अर्थ के ऊपर इट्स ऑक्सीजन एंड वाटर. चलो ये यहाँ से हम कंटिन्यू करें. क्वेश्चन तो नहीं है इसके बारे में, इसके बस अच्छे से नोट्स बना लेना ये एसिड रेन, और क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग की तो बातें कम ही है. और रिमेम्बर ये भी मैंने थोड़ा बहुत शीट के अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में. मतलब ये तो मैंने बिल्कुल लिखा हुआ है कि कौन सी गैस एसिडिक है, कौन सी न्यूट्रल है, कौन सी एम्फोटेरिक है. एसिड रेन के बारे में नहीं, शीट के अंदर नहीं लिखा होगा इसका. खैर सर हाँ, सर सेकंड इक्वेशन में हाफ ऑक्सीजन कहाँ से आई? ये तुम फिर पूछ रहे हो. एयर से. कौन सी सर? एयर एयर. अच्छा अच्छा, सही सर. तो पहले में क्यों नहीं थी? किसमें? पहले इक्वेशन में. हाँ, तो उसकी दो इक्वेशंस एक्सेप्टेबल है ना, दोनों ठीक है. अच्छा, कि थैंक यू. मतलब लेट्स से NO2 को वाटर के अंदर डाल दिया ना, ऑक्सीजन हो ही ना करीब, तो फिर ये बन जाएगा. इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बस पहली वाली याद कर लो. ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर. चलो ठीक है, ओके. ये हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एसिड रेन नेक्स्ट क्लास में. ओके, अल्लाह हाफिज़.
ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ सर। रिकॉर्डिंग भेजिए।